Hello learners, welcome back to our channel Margaretry Sugarpati. We are back again with a very fresh video on the topic divisibility rule. One interesting fact about mathematics that it comes with tips and tricks. Learning its rules and tricks itself is a skill. Is the responsibility of every math expert, whether a teacher or private math tutor, to teach rules of mathematics to every student. In this video, we are going to discover divisibility rules of mathematics. Such rules, shorthand techniques, and tricks make complex math concepts a bit handy for many of us. To quickly determine if a number is divisible by 1 or 20, 1 to 20 natural numbers without doing long division or lengthy calculations, students must know everything about divisibility rules. Learning these rules is helpful for quick mental arithmetic and saves time during competitive exams when numbers are large. Divisibility rules are also known as divisibility tests. They make the division procedures easy and quick. Math is not a piece of cake for everyone. Even the experts follow the rules, quick tips, and shortcuts to solve complex and lengthy problems. Divisibility rules are the immediate methods to determine whether a number is completely divisible by a specific number or integer. Learning divisibility rules is essential as they are handy to solve word problems, perform quick calculations, and check prime numbers. So let us head towards today's video. All the very best. वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स और डिविजिबिलिटी टेस्ट। व्हाट आर डिविजिबिलिटी रूल्स और टेस्ट? डिविजिबिलिटी रूल्स और टेस्ट आर अ सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल्स और टेस्ट टू चेक वेदर द गिवन नंबर और इंटीजर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय अनदर गिवन नंबर or not without performing lengthy calculations और द होल डिवीज़न मेथड। मतलब अगर हमें दो नंबर दिए हुए हैं तो बिना लेंदी डिवीज़न मेथड किए बिना किन्हीं रूल्स के तहत हम ये जान लें कि बड़ा नंबर छोटे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं, दैट इज़ उन्हें हम कहेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स और डिविजिबिलिटी टेस्ट। We are going to learn about divisibility test for the numbers from 1 to 20 1 by 1, यानी से 20 तक के हम divisibility test जानेंगे। और उन्हें जानने के बाद कोई नंबर 1 से लेकर 20 तक डिविजिबल है या नहीं है, ये देखने के लिए आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन रूल्स के थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं। We are going to learn about divisibility test for the numbers from 1 to 20 1 by 1 in this video। इस वीडियो में हम 1 से 20 तक के नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 1। नॉट ऑल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स हैव अ कंडीशन दैट्स द सेम केस विद द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1। रूल फॉर 1, all numbers if small or big are divisible by 1 completely। in a nutshell all numbers are divisible by 1, यानी कि एक से तो सभी नंबर्स चाहे वो नेगेटिव हों पॉजिटिव हों सभी नंबर completely डिवाइड हो जाएंगे, इसमें कोई इशू ही नहीं है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज़ 0 2 4 6 और 8 in its unit place और we can say as its last place, यानी कि किसी नंबर के आखिरी में अगर 0 या 2 या 4 या 6 या फिर 8 इन पांचों डिजिट्स में से कोई भी नंबर हो लास्ट प्लेस पर और उससे आगे चाहे कुछ भी हो तो वो नंबर 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। और we can say in other words every even number is divisible by 2। For example 2 24 last digit is 4, 108 last digit is 8 and in this number last digit is 0 and in this number last digit is 6। all these numbers are divisible by 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज मेरे पास एक ये एग्जाम्पल है, देखिए इसमें आगे के सारे डिजिट्स 2 4 6 8 0
वो हैं जो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इसका जो लास्ट डिजिट है वो है 1. सो दैट्स वाई दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2. है divisibility rule for 3. The rule of divisibility by 3 states that if the sum of the digits of the given number is divisible by 3 completely, that given number is divisible by 3. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भी नंबर को हमें डिवाइड करना है 3 से, उनकी जितनी भी डिजिट्स हैं उनके डिजिट्स का सम निकाल लीजिए. यदि वो सम 3 से डिविजिबल है, 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर भी 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 36. वैसे तो हमें देखने से पता चल रहा है कि 3 से डिविजिबल है, बट अकॉर्डिंग टू रूल 36 में जो भी डिजिट्स हैं, इसमें एक 3 है और एक 6 है. इन दोनों डिजिट्स को अगर हम सम निकाल लें इनका तो 9 होगा, और 9 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी पूरी तरह डिविजिबल होगा. सपोज मेरे पास एक और नंबर है 435. इनकी तीनों डिजिट्स का सम निकाल लेते हैं. 4 + 3 + 5, ये हो गया 7, 5, 12. 12 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो ये नंबर भी पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगा. और एक नंबर देख लेते हैं थोड़ी बड़ी डिजिट्स का. सपोज मेरे पास एक 5 डिजिट का नंबर है 48,732. हमें ये चेक करना है विदाउट डिवीज़न कि ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है कि नहीं. तो इसकी जितनी भी डिजिट्स हैं इन सब का सम निकाल लेते हैं. 4 + 8 + 7 + 3 + 2. 4, 8, 12, then 19, 22 and 2, 24. 24 is divisible by 3. So this number is also divisible by 3 wholly. Completely divide हो जाएगा. You can check it by division. अगला है हमारा divisibility rule for 4. According to the divisibility rule for 4, if the last 2 digits यानी कि digits in unit place and tens place of given number is divisible by 4 or last digits of that number are 0, 0, the number is wholly divisible by 4. कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है उसकी लास्ट जो 2 डिजिट्स होंगी उनसे जो नंबर फॉर्म होगा बनेगा, अगर वो दो डिजिट से बना हुआ नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा. या फिर लास्ट की 2 डिजिट 0, 0 होंगी तो भी वो नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 824. इसकी लास्ट 2 डिजिट ये यूनिट प्लेस पर है और ये टेंस प्लेस पर. ये दोनों नंबर दोनों डिजिट से मिलकर 24 बनता है, और हमें पता है कि 24 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी पूरी तरह से 4 से डिविजिबल होगा. सपोज एक और नंबर देख लेते हैं. ये एक नंबर है हमारे पास 1032. लास्ट की 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो है 32. 32 इज डिविजिबल बाय 4. सो दिस नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4. और देख लेते हैं, एक बड़ा नंबर लेती हूँ मैं. सपोज मेरे पास एक ये नंबर है 6 डिजिट्स का 1,23,456. इसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स है ये 56 है, एंड 56 इज डिविजिबल बाय 4. सो दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4. और एक और दूसरा पार्ट था इसमें कि अगर लास्ट में दोनों डिजिट 0, 0 हैं तो भी वो नंबर पूरी तरह 4 से डिवाइड होगा. सपोज मेरे पास एक नंबर है 300. अगर लास्ट की इसकी जो 2 डिजिट्स हैं वो 0, 0 हैं तो ये नंबर भी पूरी तरह से 4 से डिविजिबल होगा. और आप देख लीजिए 1700, लास्ट में 2 डिजिट्स हैं. दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4.